कीमती तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حال؟ أنا تمام بخير. أنا أفغان جيليبي مايكل سيداريو دي سانتا. معجرم أنا يوتيوب चैनल. तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप में फिर से मोहम्मद इब्राहिम को रोस्ट करने वाली हूँ। तो मोहम्मद आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मोहम्मद इब्राहिम को किस चीज़ के बारे में रोस्ट करना चाहती हूँ। तो मोहम्मद इब्राहिम के बारे में जो बातें मैं रोस्ट कर कई सारे वीडियोस हैं, तो अजीब लगी, लेकिन इतनी अजीब नहीं है कि रोस्ट करने पड़े। लेकिन आज जो मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, तो वो वीडियो को रोस्ट करना जरूरी हो गया था। तो मोहम्मद इब्राहिम, तुमने क्या कहना चाहता था? तो मोहम्मद इब्राहिम, तुमने क्या कहना चाहता था, ये बात अब तुम यहाँ पे बताओ। और हाँ, मैं अपनी हाथों का स्किन ज़्यादातर नहीं दिखाती, सिर्फ 5 उंगलियाँ दिखाती हूँ। तो आज मैं टी शर्ट पहनी हुई है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलें देखते हैं मोहम्मद इब्राहिम को किस चीज़ के बारे में रोस्ट करना चाहती हूँ। मैं ये वीडियो खासकर बांग्लादेशी लोगों के लिए है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि बांग्लादेशी लोगों ने इस वीडियो पे क्या रिएक्शन दी गई होगी। तो और मैं मोहम्मद इब्राहिम पर बस थोड़ी सी आम बातें आम जुबान में बात करूँगी। ठीक है, देखते हैं। আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সকলেই মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছিল বা এখনও যাচ্ছে, এবং অনেক মানুষ নাস্তিকতার মতো একটা বিষয়ে আচ্ছন্ন হওয়ার মতো একটা অবস্থায় চলে গিয়েছিল বা চলে যাচ্ছে এই একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে। বিষয়টি হচ্ছে সহিহ বুখারীর 4802, 4803 নম্বর হাদিসকে কেন্দ্র করে। এই হাদিসগুলোতে বলা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় অবনত হয় এবং পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাআলা অনুমতি দেয় তখন সূর্য আবার পুনরায় উদিত হয়। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্য কিভাবে আরশের নিচে সেজদায় যায়? কারণ আরশ হচ্ছে 7 আসমানের উপরে। কারণ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করে দিয়েছি। সো যত দূর পর্যন্ত চোখ যাচ্ছে, সূর্য, তারকা যত কিছু আছে সব কিছুই প্রথম আসমানের অন্তর্গত। এবং বলা হচ্ছে হাদিসে যে সূর্য আরশের নিচে সেজদায় যায়। এবং সূর্য কিভাবে সেজদায় যায়? সূর্য তো আমাদের মতো সেজদা করতেছে না। সো সূর্য কেন এরকম অফ থাকবে, অর্থাৎ চলমান অবস্থায় সূর্য আছে, আমরা বিজ্ঞানের আলোকে জানতে পারছি। কিন্তু হাদিস অনুযায়ী মনে হচ্ছে যে সূর্য হয়তো চলছে না, সূর্য হয়তো স্টপ আছে। এমন একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক নাস্তিক
সাধারণ মানুষের ব্রেন ওয়াশ করে ফেলে এবং একটা পর্যায়ে সাধারণ মানুষ নাস্তিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সো এই বিষয়টির উত্তর দিব আজকে ইনশাআল্লাহ। প্রথমত আপনাদের চলে যেতে হবে পবিত্র কোরআনে। পবিত্র কোরআনে যদি আমরা খেয়াল করি, পবিত্র কোরআনের 13 নম্বর সূরার 2 নম্বর আয়াত, এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ পাক চন্দ্র এবং সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। আল্লাহ বলছেন যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ে মানে হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত, তাফসিরে যেটা বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় মানে হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত তারা চলবে। আল্লাহ কিন্তু বলে নাই যে তারা থেমে থাকবে বা কখনো থামবে, বলছেন যে চলবে, রানিং। তো এই বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার হবে যদি পবিত্র কোরআনের সূরা ইব্রাহিম 14 নম্বর সূরার যদি আপনি 33 নম্বর আয়াত পড়েন। এই আয়াতে আল্লাহ পাক একদম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ পাক চন্দ্র এবং সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে, বিরামহীনভাবে তারা চলতেছে। তাহলে এই আয়াত আল্লাহ একদম স্পষ্ট করে বলেছেন যে চন্দ্র এবং সূর্য বিরামহীন, তাদের কোনো বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, তারা বিরামহীনভাবে চলতেছে, একদম টানা চলতেছে। অর্থাৎ এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট সূর্য এবং চন্দ্র চলমান, অর্থাৎ তারা তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতেছে, তারা থেমে নাই। তো এখন হাদিসের ব্যাপারে আসি। আপনারা কোরআন থেকে বুঝতে পারলেন যে কোরআনে আল্লাহ পাক একদম স্পষ্ট করে বলেই দিচ্ছেন যে সূর্য এবং চন্দ্র চলতেছে, তারা স্থিতিশীল না, তারা গতিশীল। এখন হাদিসে বলা হচ্ছে আরশের নিচে সূর্য সেজদায় যায়। তো ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝাই। সৃষ্টি জগতের সর্বোচ্চ মানে একদম উঁচু স্তরে বা সবার শেষে বলতে পারেন যে আরশ রয়েছে। তো আলটিমেটলি কি আমি আপনি সবাই আরশের নিচেই রয়েছি। তো সামহাও আমি যদি বলি যে আমি আরশের নিচে সেজদা করতেছি, এটাও একটা সেন্সে ঠিক, কারণ আমরা সবাই আরশের নিচেই আছি, আমরা কিন্তু আরশের উপরে কেউ নাই। সো ওইখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আরশের নিচে সূর্য সেজদায় যায়, সেটা হচ্ছে রাইট বিষয়, কারণ সূর্য আসলে আরশের নিচেই তো আছে, আমরা তো সবাই আরশের নিচেই আছি। সো এটা রং কিছু না, ফার্স্ট অফ অল। তো সেকেন্ড থিং, এখানে বলা হচ্ছে যে সূর্য আরশের নিচে সেজদায় যায়। তো সেজদাটা কি আমাদের মতো আমরা যেমন বসে বসে একটা জায়গায় স্থিতিশীল অবস্থায় সেজদা দিই, ব্যাপারটা কি এমন না? মোটেও ব্যাপারটা এমন না। সূর্যের কিন্তু আমাদের মতো হাত পা নেই বা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এমন কোনো হাত পা আছে। সো এখানে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা ইব্রাহিমের 33 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে যেহেতু বলেই দিয়েছেন যে তারা বিরামহীনভাবে চলতেছে, কাজ করতেছে। সো ওখান থেকে স্পষ্ট সূর্য চলতেছে, তার মানে সূর্য চলমান অবস্থাতেই আল্লাহকে সেজদা দিচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন? আমি আপনি অনেক সময় ট্রেনে যাই, বাসে যাই কিংবা প্লেনে যাই, তখন কি হয়? তখন যখন নামাজের সময় হয়, আমরা কিন্তু অনেক মুসলিমই নামাজ পড়ি সেই বাসের মধ্যে বা ট্রেনের মধ্যে বা প্লেনের মধ্যে। তো আমরা কি তখন স্থিতিশীল থাকি? আমরা কিন্তু গতিশীল থাকি। ট্রেন আমাদের নিয়ে চলছে, প্লেন আমাদেরকে নিয়ে চলছে, কিন্তু ওই অবস্থাতে আমরা সেজদা করতেছি, অর্থাৎ আল্লাহর জন্য নামাজ পড়তেছি। তো আমরা কি করতেছি? চলমান অবস্থাতেই সেই নামাজটা পড়তে পারতেছি। তো সেম থিং বোঝানোর জন্য বললাম যে সূর্য কিন্তু চলমান অবস্থাতেই আল্লাহকে সেজদা করছে এবং সেই অবস্থাতেই আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি পাচ্ছে বারবার চলার জন্য। সো এটা হচ্ছে মূল বিষয়, আমাদেরকে ব্যাপারগুলো ভালো করে বুঝতে হবে যে সূর্য চলমান অবস্থাতে সেজদা করতেছে, সূর্যের সেজদার অবস্থা আর আমাদের সেজদার অবস্থা এটা কিন্তু মোটেই এক না। অর্থাৎ আমরা যেমন হাত পা দিয়ে একদম বসে বসে সেজদা করতেছি, একদম ওই জিনিসটা সূর্যের ক্ষেত্রে না। সূর্য একটা আলাদা, মানে সে একটা নক্ষত্র মাঝারি আকারের। সো তার সেজদার বিষয়টা তার মতো, সেটা আমাদের মতো না। এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট। এবং এখন আসেন মূল কথায় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো কেন বলেছেন তার উম্মতদেরকে। এটার একটা বড় কারণ রয়েছে। আগের দিনের মানুষগুলো, সেই সময়কার সেই যুগের মানুষগুলো অনেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তারা এই চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ বা এই সূর্য চন্দ্রের অনেক ক্ষমতা আছে এই ধরনের একটা বিষয় তাদের মাথায় সেট হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা ভাবতো যে এগুলোর অনেক পাওয়ার, এগুলো অনেক সুপ্রিম। তো যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে সূর্য আরশের নিচে সেজদায় যায়, তখন যে সমস্ত মানুষগুলো সূর্যের পূজা করত বা যারা সূর্যকে অনেক বড়োভাবে ভাবতো বা সূর্যের অনেক ক্ষমতা আছে এমন কিছু ভাবতো, তারা কিন্তু তখন একদম স্পেসিফিকভাবে বুঝতেই পারলো যে এই সূর্যের কোনো ক্ষমতা নেই, কারণ এই সূর্যই তো আল্লাহর আরশের নিচে সেজদায় যাচ্ছে। অর্থাৎ সূর্য আল্লাহর ইবাদত করতেছে, সূর্যের কী ক্ষমতা আছে? সূর্যের তো কোনো ক্ষমতা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আমাকে বললেন যে এই বেটা তুই আমাকে চিনিস, আমি হচ্ছি ওই জামশেদের ভাই লাগি। তো আমি বললাম যে আরে তুমি জামশেদের ভাই লাগো, ওই জামশেদ তো আমাকে দেখলে সালাম দেয়। তো তখন ব্যাপারটা কী হলো যে আপনি তখন চিন্তা করবেন, আরে আমার বড় ভাই ওকে সালাম দেয়, তার মানে ও তো আরও বড় লিডার। তো ব্যাপারটা মানে বোঝানোর জন্য বললাম যে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে সূর্য আরশের নিচে সেজদায় যায়, তখন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তির মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারলেন যে আসলে সূর্যের কোনো ক্ষমতা নেই, সব ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার। সো এই জন্য মানুষের ঈমান বৃদ্ধির জন্য এই বিষয়গুলো এভাবে মেইনলি বলা হয়েছে। আর কোরআন থেকে এবং হাদিস একসাথে আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পারি যে সূর্য কিন্তু
মানে গতিশীল, এটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব। এবং এই হাদিসের মূল বিষয় হচ্ছে মানুষের ঈমানকে মজবুত করা। সেই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলো যারা সূর্যের পূজা করত কিংবা সূর্যকে বড়ভাবে ভাবত, তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ফুল তাওয়াক্কুল, একদম পরিপূর্ণ ভরসা, পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, এই বিষয়গুলোর নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের হাদিস বা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যেই উম্মতকে বলতেন। সো আজকের এই ভিডিও দেখে আপনারা বুঝতে পারলেন যে সূর্য কিন্তু থেমে নেই, সে চলমান অবস্থাতে সেজদা করতেছে এবং এই হাদিসটার মধ্যেও কোনো বৈজ্ঞানিক ভুল নেই, কিছুই নেই। ভুল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের বোঝার ভুল। তো আমি আশা করি যে আজকে আমার এই ভিডিও দেখে ইনশাল্লাহ আপনারা মানে বুঝতে পেরেছেন ইনশাল্লাহ। সো আপনাদের আর কী প্রশ্ন আছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবং আমি চেষ্টা করব এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভিডিও করতে। ম্যাক্সিমাম অনেক ধরনের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিও করে ফেলেছি আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্রুইস। अब मैं आपको बात करूंगी उन हादिसों को, जिस हादिसों के बारे में मोहम्मद इब्राहिम ने कहा था कि उन हादिस के मिस एक्सप्लेनेशन की वजह से कई सारे मुस्लिम इस्लाम छोड़कर एथिस्ट बन गए हैं या फिर बनने वाले होते हैं। तो ये मोहम्मद इब्राहिम का मानना है। खैर, मोहम्मद इब्राहिम का मानना वो माने, हमारी क्या बात है। तो मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि हादिस में ये लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सूरज और चंद्रमा यानी कि सन और मून, सूरज और चंद्रमा अल्लाह ताला की आरोश पे सिजदा कर रहे हैं, करने वाले जाते हैं। ये बात तो आप तो ठीक कहा कि हम बाकी अल्लाह ताला के आर्श के अंडर में है, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम आपने गौर नहीं की कि आपने इन हदीस को क्या दिया है, लिखा है। हमें बस उतना ही बताया है जितना आप बताना चाहते हैं, लेकिन आप जो हदीस पूरी तरह से पूरा हदीस दिखा रहे हैं, हदीस का जो पूरा आयत दिखा रहे हैं वो ये है कि मस्जिद के एक जमात में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा किराम, तुमको पता है सूरज और चंद्रमा कहाँ डूब जाते हैं? तो सहाबा किराम कहते हैं कि अल्लाह ताला और उसकी रसूल को ज़्यादा मालूम हो। तब हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरज और चंद्रमा अल्लाह ताला आरश के पैरों तले अपना सर झुकाते हैं। तो गौर करने वाली बात है कि सूरज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कहा कि सूरज और चंद्रमा कहाँ डूब जाते हैं, तो हम सबको पता है और पहले ज़माने के जो आम इंसान होते हैं उसको भी पता है कि सूरज और चंद्रमा पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं। तो चंद्रमा कभी कभी चंद्रमा पूर्व दिशा में और सूरज पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं। तो पहले जमाने के में ये मानना था कि धरती ही दुनिया की
एकलौती प्लैनेट है जिसके आसपास चंद्रमा भी जैसे सैटेलाइट भी घूमते हैं और सूरज जैसे स्टार भी घूमते हैं जिसके आसपास। तो आज के तो आम लोगों को ये पता है कि धरती सूरज के आसपास घूमते हैं और चंद्रमा धरती के आसपास घूमती है। तो और है तो उसकी तफसीर हदीस की तफसीर बताते हुए मोहम्मद इब्राहिम साहब आपने ये कहा कि सूरज और चंद्रमा पूर्व दिशा अल्लाह ताला की आर्श में डूबे हुए होते हैं। तो खैर आपने सूरा रात की दूसरा आयत में को तर्जमा करते हुए ये बताया कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला आसमानों को धरती से बिना खूंटी के में ही ऊंचे कर दिए हैं और आरोस में जाकर सूरज और चंद्रमा को धरती के लिए फिक्स्ड रखे हैं ताकि हम अल्लाह ताला अपने खालिक के सामने अपना सर झुका सके। तो खैर यहाँ पे ये पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मोहम्मद इब्राहिम मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, बस मुझे जो समझ में आती है वो बता रही हूँ, आप आगे आपकी मर्जी। तो पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, यहाँ पे ये कहा था कि आसमान को बिना खूंटी में ही धरती से बहुत ऊंचे जगह पे रखते हैं, जबकि हम सबको पता है कि आसमान का मतलब ऐसे एरिया जो ग्रेविटिकली वैक्यूम है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो नज़दीकी आसमान है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बादल रहते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है जो आसमान को पूरी कर सके। और स्पेस जो कुरान के भाषा में आसमान कहा गया है, तो उस स्पेस में लाखों करोड़ सूरज, लाखों करोड़ नक्षत्र, स्टार, सैटेलाइट और प्लैनेट भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लैंक ही रहते हैं। तो वैक्यूम को अगर ऊंचा पे रखा जाए तो वैक्यूम को धरती से ऊंचा पे रखना कौन सी बड़ी बात है, वो तो वैसे ऊंचा पे रखा जा सकता है, क्योंकि उसको ना कोई अपना वेट होता है और ना अपना उसको ऊंचा में रखने के लिए अपना एक्सीलेटर की फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भी ऊंचा हो जाता है। हाँ, सूरज और चंद्रमा को हमारे लिए फिक्स्ड कर दी गई है ताकि हम चाँद में हम जब बाहर जाते हैं तो चाँद की रोशनी में हम थोड़ा रात में चलने की सुविधा हो, और दिन के लिए सूरज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सूरज नहीं तो दिन तो कैसे होगा, और सूरज की रोशनी के बिना दिन नहीं माना जाएगा। तो अभी जून महीने की 30 तारीख की सुबह 7:42 में जो है वो दिन ही मानी जाती है, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है।
सूरज की रोशनी वाले वक्त को यहाँ पे दीन ही माने जाते हैं पहले जमाने के हिसाब से। तो ये तो थी ये तो आपको आपने बात बता दी है। अब मैं दूसरी बातें बताने वाली हूँ। तो दूसरे हादीस में ये कहा है कि चंद्रमा, जैसे आप कोटेशन दिखा रहे हैं, तो चंद्रमा और सूरज को बिना रुकावट के अल्लाह ताला ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी स्पीड में कोई रुकावट नहीं होती है। हाँ, ये बस अल्लाह ताला ने ऑपरेट की है। तो लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन हम आपने क्या दिया था? तो अल्लाह सूरज और चंद्रमा अल्लाह की आरश में उतनी झुके रहते हैं जितने कि हम जब प्लेन में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, तब हम अल्लाह ताला के आरश पे सिजदा करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो हर वक्त की फर्ज नमाज जो है उनके लिए फिक्स्ड किबला है, उन किबला के अंदर नमाज पढ़ना होगा। अगर और जहाँ से भी चूक हुई तो बहुत मुश्किल पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ, मैं मुंबई से टोक्यो तक प्लेन की सफ़र करूँगी। तो उसके वहाँ पे जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन पे तो हिसाब से हम अपनी किबला को फजर नमाज के लिए फिक्स कर देते हैं। अब मुश्किल बात तो ये है कि प्लेन हमेशा सीधे नहीं जाते, कभी कभी टेढ़ी पे की रास्ते पे पकड़कर सीधे दिशा में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये प्लेन इस तरह से दिशा है, और ओके, प्लेन का दिशा इस तरफ है। तो और किबला का दिशा उस तरफ है। तो सीधे रास्ते पे जाएंगे तो किबला का दिशा बदलते जाएंगे। आप पहली दिशा पकड़कर अगर किबला के सामने नमाज पढ़ने गए तो टोक्यो तक पहुंचते पहुंचते मक्का की किबला से हटकर हो सकता है कि वेनिस पर किबला बना लिया है गलती से। तो जानबूझ के तो हमने किबला नहीं तोड़ा, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से गलती से हमें किबला तोड़ना पड़ेगा। किबला को दिशा बदलना पड़ेगा। तो ये तो थी उनकी बातें। आपको मैं अपनी फुटबॉल के जरिए मैं आपको समझा देती हूँ। आज क्या जाए, ये एक धरती है और ये एक किबला है। हाँ, ये किबला है। तो बांग्लादेश जब सिजदा करेंगे तो यहाँ पे सिजदा करेंगे,
लेकिन अगर इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड में अंग्रेज लोग इंग्लैंड में से सिजदा करने निकले तो यहाँ पे सिजदा करें, यह इस दिशा में सिजदा करनी पड़ेगी, वो इस दिशा में सिजदा नहीं कर सकते। तो और ये है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ से चंद्रमा मून से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से मून राइज हो जाते हैं, और सूरज यहाँ से सनसेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से सनराइज शुरू होता है। हाँ। तो हम सब हमारा जो विश्व ब्रह्मांड है वो अल्लाह ताला की आरश के नीचे में है, तो उसके हिसाब से ये भी अल्लाह ताला की आरश के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर रखा तो इस दिशा में हो सकते हैं और इस दिशा में हो सकते हैं। चले इंसानी सिजदा की बात तो छोड़ ही दे। तो आपने मोहम्मद इब्राहिम आपने ये कहा कि चंद्रमा की अल्लाह ताला की सिजदा में अर्श के अंडर में है, और हम भी अर्श के अंडर में हैं, तो और इसी हिसाब से धरती भी अर्श के अंडर में होना चाहिए है। तो अब मुश्किल ये है कि ये अल्लाह ताला की अर्श, ये सातों आसमान और ये है विश्व ब्रह्मांड, तो हट और ये है धरती। तो साउथ पोलर में जो है तो पैर धरती के अंदर की तरफ है, तो दिशा सीधे लंबे कर दे तो अर्श तक पहुंच जाते हैं। जो ये बात हमारे ये एक्सप्लेनेशन हमारी समझ के बाहर है। तो मोहम्मद इब्राहिम अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए, तो आपके लिए हम बहुत मानते हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम आपने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला की आरश के सामने सर झुका हम सब सर झुकाते हैं, और हमारा जो प्लेनेट है, सैटेलाइट है, और नेचुरल सैटेलाइट है और स्टार है, वो भी अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। तो आपने ये भी कहा कि पहले ज़माने के लोग, हमें मानती हूँ, पहले ज़माने के लोग अल्लाह ताला के खिलाफ खड़े ये मानते हैं कि सूरज के अपना ताकत है, चंद्रमा में की अपनी ताकत है, अंधविश्वास में झुके हुए रहते हैं। तो मोहम्मद उसको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाने के लिए ये कहा था कि देखो अल्लाह ताला आरश, चंद्रमा अल्लाह ताला के आरश में झुका हुआ है। तो उसके एक्सप्लेनेशन में आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला सूरज और चंद्रमा को एक फिक्स्ड फोर्स दी जो सूरज और चंद्रमा के लिए एलोकेट करने के लायक है। और इससे ज़्यादा सूरज और चंद्रमा एलोकेट नहीं, एस्केलेट नहीं कर सकते। तो एस्केलेट जब सूरज और चंद्रमा ज़्यादा पावर एस्केलेट
नहीं कर सकते तो उससे भी बड़ा ताकतवर तो है जो खुदा है। तो यहाँ पे नास्तिक वाली बात कहाँ से आ रही है? ये किसी भी आम इंसान की भी समझ के बहुत बाहर होता है। तो ये आपको बहुत आम इंसान के बारे में पता हो तो ये बातें भी आम इंसान की समझ के बाहर है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा जहान के नबी हैं और सारा जहान के रसूल हैं। वो हम मुसलमान मानते हैं। तो हम मुसलमान के मानने के अनुजाई हिसाब से मानने के मुताबिक जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना चाहिए था कि सूरज और चंद्रमा नहीं डूबती बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की आरुश में रहते हैं और अल्लाह ताला की आरुश को मानते आए हैं। तो सूरज और चंद्रमा मोहम्मद साहब ने सवाल की है, सूरज और चंद्रमा कब डूब जाती हैं? ये आयत कहने का ये जाहिर करने या ये आयत हदीस की ये आयत मुझे जाली लग रही है। तो क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये आयत के हिसाब से हजरत ये आयत के हिसाब से जो है तो सूरज और धरती चपटी होती है, लेकिन हमने पता है धरती गोल है। तो धरती जो गोल है ये बात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता थी, ज़रूर पता थी, लेकिन सूरज और चंद्रमा कब डूब जाती है ये बात आप कैसे कह सकते हैं, जबकि उनको खुद पता है कि सूरज और चंद्रमा नहीं डूब जाने वाली और धरती गोल है, इसलिए सूरज और चंद्रमा नहीं डूबने वाली। क्योंकि मक्का में जहाँ सूरज डूब जाती है तो न्यूयॉर्क में वहाँ सूरज उठ जाती है, और न्यूयॉर्क जब सूरज डूब जाती है तो ढाका में तब सूरज उठ जाती है। तो ये बात है। आप चाइना को ही देख लो, एक जगह का सुबह 6 बजे है तो दूसरी जगह पे दूसरी कोने पे सुबह 6 बजे के बजाय शाम 6 बजे हो जाते हैं। सॉरी, चाइना में के पश्चिम कोने पे जब सुबह 7 बजे होते हैं तो पूर्व कोने में शाम 7 बजे होते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस हदीस को कहने के अल्टीमेटली ये कहा गया है कि धरती चपटी है, सूरज और चंद्रमा डूब जाती है वगैरह वगैरह। तो इस्लाम की जो ज्ञान आप जुपिटर और उसकी सैटेलाइट यूरोपा और या फिर सटर्न नाम की जो प्लैनेट है उसके आसपास जो 100 सैटेलाइट होते हैं उनके बारे में आप अगर कहा होता तो बहुत बड़ी में
मैं खुश होती हूँ कि हाँ भाई ये बारे में बात की जा रही है, लेकिन ये बात आपने तो कहा ही नहीं। खैर, जो भी हो, मैं आपको आगे की पॉइंट बता आऊंगी। तो आपने मिसाल के तौर पर ये भी कहा था कि आपसे कोई दूसरा इंसान कहता है कि मैं जमशेद भाई का बेटा हूँ, जो यहाँ के बहुत बड़े पावरफुल हैं, लीडर हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आए तुम जमशेद भाई के बेटा हो, तो जमशेद भाई हमें देखकर सलाम ठोकते हैं। तो उस दूसरे इंसान ने ये सोचा, अरे जमशेद भाई तो उन्हें देखकर, पहले इंसान को देखकर सलाम ठोकते हैं, यानी कि पहले इंसान उससे भी बड़ा ताकतवर होगा। ये कितना इलॉजिकल बात है ना? तो यह जो कुछ तो स्टेट का जो लीडर है, अब तो डेमोक्रेसी चल रही है, और पहले ज़माने में तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात लेने के बाद जो खिलाफत राशिदीन हुआ है, उनसे लेकर आज तक कई सारे लीडर ने आम लोगों, ताकतवर लीडर ने आम लोगों को देखकर सलाम ठोकते हैं। तो खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरी खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इस्लाम की चौथी खलीफा और सिया की आइडियोलॉजी मुताबिक इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मेरी मानने के मुताबिक इस्लाम के चौथी खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी आम लोगों को से सलाम ठोकते हैं। तो आप जब मस्जिद में, जो मस्जिद नबवी में जब सूरा बैठती है जब भी सूरा बैठती हो, तो तब भी दूसरों को सलाम देकर ही मिंबर में आते हैं और अपना राजकाज चलाते हैं। तो मैं आपको कहती है, अगर कहूँ कि मैं जेनिफर बेन की बेटी हूँ, और आप अगर कहें कि मेरे मिसाल दे दी, असली मिसाल नहीं, बस डेमो दे दी, डेमो के हिसाब से कहा जाए तो चलिए कहती हूँ, आज के अजय मैं जेनिफर की बेटी हूँ, और आपको मैं आपके सामने अगर कहूँ कि मैं जेनिफर की बेटी हूँ, जेनिफर मेरी अम्मी जेनिफर इस एरिया का बहुत बड़े लीडर है, तो और आप अगर कहें तो तुम जेनिफर की बेटी हो, जेनिफर मुझे देखकर सलाम ठोकते हैं, तो मैं क्या समझूंगी? मैं ये नहीं समझूंगी कि जेनिफर आपको देखकर सलाम ठोकते हैं, इसलिए आप जेनिफर से बहुत बड़े पावरफुल लीडर बन गए हैं। उस वक्त मैं ये सोचूंगी कि जेनिफर तो हर आम इंसान को सलाम तो ठोकती है, तो आपको भी सलाम ठोकी होगी, तो आपको सलाम दे दिया होगी। तो
तो कुछ लोगों के लिए मैंने कोई बड़े इंसान मुझे सलाम ठोकते तो मैं उनसे भी ज़्यादा ताकतवर मानती हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो साउथ एशिया में अगर आप ऐसा सोच सकते हैं कि बड़े लीडर अगर किसी इंसान को सलाम ठोकते हैं तो वो दूसरे इंसान उस पहले इंसान जो बड़े लीडर हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आप अगर चाइना की सोच की तरह सोचा के, जापान की तरह सोचोगे, आप अगर इंग्लैंड अमेरिका या फिर इजराइल की तरह सोचोगे तो आप यही सोचोगे कि मेरे भाई जो पावरफुल लीडर होने के बावजूद हर दूसरे को सलाम ठोकते ही है, तो आपको भी ठोका होगा। बस दिमाग में वही बातें आएगी। तो दिमाग में वही बातें अगर आएगी ही तो इको वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। तो वीडियो बहुत छोटी हो गई है, आई नो, तो खैर आपको मोहम्मद इब्राहिम, आपको बस कुछ बातें बात करना चाहती हूँ। आप इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, आप इस्लामिक वीडियो बनाकर हमें इस्लाम का पाठ पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को अपना धर्म मजहब के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप इस्लाम के बारे में बात करते वक्त आपने कई सारे बातें ऐसी कही जो इस्लाम की इमेज को खराब करने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब्बासियों खिलाफत के वक्त कई सारे वर्ल्ड फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट निकले हैं। लेकिन आप यहाँ पे पूरी की पूरी इलॉजिकल बातें बता रहे हैं। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट आप दिखाते हो, लेकिन बात उसकी एक हिस्से के बारे में बात करते हो, दूसरे हिस्से में के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे हिस्से के बारे में जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो आपको हम क्या समझेंगे? तो आप हमें क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? तो ये हर किसी की भी समझ के बाहर होगी, ये होना तय है। तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी बातें हमको शेयर कर सकते थे, या फिर अपनी बातें हमसे बात करना चाहते थे। तो ऐसे इलॉजिकल स्टूपिड बताकर ऐसे इलॉजिकल स्टूपिड बातें बताकर तो हमें ये पाठ पढ़ा, इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है। आप इस्लाम का पाठ पढ़ाइए, ये हम जानते हैं। लेकिन आपने क्या किया? इस्लाम के पाठ पढ़ाने के चक्कर में आके आपने ऐसे पाठ पढ़ाई है जो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है। बाप रे बाप! तो हमारी समझ में के बाहर जो के बात करोगे तो हम इसे कैसे समझे और क्यों समझे भाई? तो
यहाँ पे आपने इससे पहले के बारे में, पहले की वीडियो में तो आपने डार्विन को बदमाश कहा था। हाँ, डार्विन बदमाशी में इवोल्यूशन थ्योरी एस्टैब्लिश कर दी, लेकिन आज के ज़माने में साइंटिस्ट प्रैक्टिसिंग रिलीजन प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि एवोल्यूशन होते हैं, और एवोल्यूशन होना तो एवोल्यूशन में हम इंसान होते हैं, और एवोल्यूशन के जरिए ही हम अपना इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले ज़माने के इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम जिस तरह से काम करती थी, तो आज के ज़माने में कि इंसानों की इम्यूनिटी सिस्टम क्या उसी तरह काम करेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे कुछ अलग तरीके में काम करेगी। तो कोविड के बारे में, कोविड के बारे में बात करूंगी। तो कोविड के वक्त हम कोविड के वक्त यहाँ पे 5 लाख लोग सन 2020 की जून 30 की हिसाब से 5 लाख लोग की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चपेट में आकर। तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गई थी, और 4 मिलियन लोग चंगे हो गए थे। लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं लगेगी है, तो अब बिना वैक्सीन में ही 4 मिलियन लोग चंगे हो गए हैं, तब जाकर वैक्सीन बनाने की प्रोसेस चल रही है। लेकिन आप यही कोविड की वायरस को आप 100 साल पहले या फिर 400 साल पहले आया होता हो तो क्या होता है? यही 4 करोड़ की मौत, क्योंकि पहले जमाने में इस कोविड वायरस से भी कमजोर वायरस में ही लाखों लोग करोड़ों लोग मारे हुए हैं। एक छोटी सी प्लेग के चलते इंग्लैंड में ही 1 करोड़ की मौत हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो डेवलपमेंट हुई वो किस वजह से हुई? वो एवोल्यूशन की वजह से ही हुई है। तो एवोल्यूशन के जरिए ऑपोजिट एनवायरनमेंट से लड़ने की ताकत हमें बढ़ चुकी है, और हमारी इम्यूनिटी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, वो इवोल्यूशन के जरिए से। पहले जो इवोल्यूशन हुआ ही नहीं होती थी, उसके पहले की बात करो, छोटे से छोटे वायरस में भी लाखों लोग मर जाते हैं। तो सऊदी अरब तो इवोल्यूशन को नहीं मानते। सऊदी अरब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रिचेस्ट कंट्री है।
है, लेकिन सन 1980 में ही 1800 बांग्लादेशियों की मौत हो चुकी है हज करने वक्त। तो हज करने वक्त अगर ऐसा हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, अगर इम्यूनिटी सिस्टम को हम और ताकतवर बना दें तो इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत छोटी हो गई थी, मैं जानती हूँ, लेकिन टॉपिक ही बहुत छोटी थी। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आप देख रही है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पहुंच सके। इंडियन लोग अगर देख रहे हो तो मेरी यूट्यूब में जो मैंने सोशल मीडिया का लिंक दी है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ही कुछ यूट्यूबर की हिसाब से बैन हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे हैं तो उन पर भी टिकटॉक लाइक ही काम करते हैं। तो ठीक है, टिकटॉक ना मेरी लिंक को देख सकते हैं, टिकटॉक लिंक को देख सकते हैं। वहाँ में अच्छे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की होती हैं। तो अच्छे वीडियो को पोस्ट करती हूँ और वहाँ पे अच्छे वीडियो को कुछ पॉजिटिव वीडियो को पोस्ट करती हूँ। वहाँ पे आपको कोई क्रिंज देखने को नहीं मिलेगा। तो उस सोशल लिंक में नहीं आना चाहते आपकी मर्जी, और सब्सक्राइब कर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अगर सब्सक्राइब कर भी ली तो ऑल बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं यहाँ पे हर तरह की रोस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन करती रहती हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।